Hello dear students, I welcome you to today's class. How are you all doing? I hope you all are doing well. So, we are doing chapter 5, Political Science, which is talking about women and the role that is played by women in the society, how women can change the world. Okay? So, looking at the condition in the society, looking at the all whole situations in the society, we will be understanding. We have discussed about some great women of our times of this world. हर एक का वीडियो में मैंने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है. आई एम नॉट डिस्कसिंग इट टुडे. I am just mentioning their names, that how women have changed the world, what we are understanding, and how do we segregate, how do we understand the role played by women in these societies. Please understand, children, that women have been a part of our society सिंस द वेरी बिगनिंग. हम शुरू से औरतों को जानते हैं, हम शुरू से इस चीज को समझते हैं दैट अगर औरतें नहीं होंगी, इफ विमेन आर नॉट देयर, देन द थिंग्स वुड बी वेरी टफ. आप भी मानोगे इस बात को. कम ऑन, यू विल बी ऑल्सो थिंकिंग एंड यू विल बी ऑल्सो बिलीविंग अबाउट इट. गॉट इट? सो वी स्टार्टेड द चैप्टर विथ द नेम एंड एग्जाम्पल ऑफ some great ladies. Got it? We have understood the example of some great women. All this रोकैया हुसैन शेखावत. लास्ट वीडियो में हमने रोकैया हुसैन शेखावत के बारे में पढ़ा. The women who are from the economically low family, and then the women who were from very well-to-do families. बहुत अच्छी फैमिली को भी जो औरतें बिलोंग करती थी, एंड जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से द लेडीज हु बिलोंग टू, all these ladies have played a very important role in bringing change in the society. मतलब सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए they have to take certain steps, they have to plan certain things, जहां पे the changes were felt. मतलब the girls who were not allowed to go to the school, उनके लिए रोकैया हुसैन शेखावत ने स्कूल खोला. भाई प्रॉब्लम क्या है? that the girls should not interact with the boys. हाँ, पॉइंट ये था कि गर्ल्स को अलग रखना है, बॉयज को अलग रखना है. तो शी सेड ओके, बट देन why should the girls be kept away from education? पढ़ाई लिखाई से तो उनको अलग नहीं रख सकते. They cannot be kept separate from education. So this was decided and it was taken care of, where we have to see, we have to understand that women education was given lot of importance. And one example that we have seen was of Rokeya Hussain Shekhawat. She started a school for girls in Kolkata. Still the school is running and doing so well. Got it? अभी एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी. Children, here I would definitely like to say one thing is that when you get education, आपको जब education मिलता है, many a times you don't realize, आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हो कि आपको कितनी बड़ी फैसिलिटी मिली हुई है. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसा भी टाइम था जब औरतें पढ़ने के लिए परेशान होती थी. द वुमेन वेर रियली ट्रबल्ड एंड थॉटफुल अबाउट गेटिंग एजुकेटेड, लेकिन एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी. ओके, दैट काइंड ऑफ अ टाइम ऑल्सो वुमेन हैव विटनेस्ड. उन्होंने ये चीज भी देखा है, इस चीज को भी महसूस किया है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वुमेन्स लाइफ कुड बी चेंज्ड. गॉट इट? नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग. ओके,
तो अब जो हम चीज पढ़ेंगे, जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक स्कूलिंग एंड एजुकेशन इन टूडेज टाइम। आज के जमाने में स्कूलिंग एंड एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज है, व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर स्कूलिंग and for the education system। हम लेकिन ये कैसे पता करते हैं? How do we come to know about these facilities? How do we come to know about the schooling and the education system that is prevalent and that is practiced? Okay, तो we have to understand that now अभी तो क्या है, there is no difference between boys and girls। Everybody is going to the school for getting education। इस चीज से बिल्कुल भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। We cannot just say कि नहीं स्कूलिंग तो अब खाली गर्ल्स के लिए स्कूलिंग नहीं है, बॉयज के लिए ही खाली स्कूल की फैसिलिटी है। These things cannot be said now because the times have changed। समय बदल गया है, स्कूलिंग सिस्टम भी बदल गई है। जितना इंपॉर्टेंट गर्ल्स के लिए एजुकेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट बॉयज के लिए एजुकेशन है, इन द सेम वे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। सो स्कूलिंग इज हैपनिंग, एजुकेशन इज हैपनिंग, गर्ल्स आर ऑल्सो एनकरेज्ड टू गो टू द स्कूल्स and it is not only for the well-to-do families or for the well-off families। Every family sends the girls to school। कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? How many boys and girls are going to school? There is a method of calculating that। ये होता है, हर साल भी होता है, it happens every year also। लेकिन हमको जो चीज पता चलती है, what we come to know is through census। Got it? Census सुना है आपने? Yes, definitely you might have studied about census in class 6। Census is the process where the whole population counting happens। एक कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, इसकी पूरी काउंटिंग होती है एंड इट इज अ वेरी बिग टास्क। बहुत बड़ा काम है ये। गॉट इट? इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क। दैट्स व्हाई एवरी ईयर इट इज नॉट डन। सेंसस इसीलिए हर साल नहीं होता है, हर 10 साल पे होता है। तो अभी जो हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ है, द लास्ट सेंसस दैट हैज हैपेंड वेयर द कंप्लीट पॉपुलेशन काउंट हैज हैपेंड, it had happened in the year 2011। ओके, एक सेंसस हुआ है 2011 में, another census will happen in 2021 नेक्स्ट ईयर। अभी 2020 चल रहा है ना, so next year we will be having census। तो every 10 years we are calculating the complete data and we come to know कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें से बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। All these things are taken into consideration। All these things are kept in mind। Okay, all these things are practiced। So this is what is the work in census every 10 years and we also come to know how many literate people are। तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं? How many people in the country are there who are literate, who are educated? ये भी चीज हमको सेंसस से पता चल जाती है। तो what we have done is that we have compared two census। दो सेंसस हमने लिया है। One census is from 1961। एक जो population count had happened in 1961, एक तो हमने उसको लिया है, we have taken that into consideration। The other one that we have considered, that we have been talking about, is 2011। Now what happens is that literacy rate has kept on changing। लिटरेसी पहले बहुत कम थी, लिटरेसी रेट, very less girls and were educated। Okay children, got it children? So the number of boys and girls who are going to school, we come to know about it।
गर्ल्स एंड बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द स्कूल। एनरोल्ड मीन्स जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। आपने भी जैसे स्कूल में एडमिशन लिया है तो आपको एक एडमिशन नंबर मिला होगा, दैट इज योर एनरोलमेंट नंबर। दैट यस, अंकिता सिंह इज हियर, हर नंबर इज 6772। ओके, दैट इज योर एडमिशन नंबर एंड दैट इज योर एनरोलमेंट नंबर। उसी नंबर से आपको स्कूल में आपका ऑल द रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड विद दैट नंबर। गॉट इट? ऑल द रिकॉर्ड इज मेंटेन, क्योंकि आपका देखो यू ट्रांसफर होता रहता है, आपको हमेशा आप यू मूव फ्रॉम वन, योर फादर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो ये सारी चीजें जब होती हैं उसमें सडनली यू कम टीसी चाहिए दिस, तो योर नंबर फाइल इज देयर, उससे पता चलता है दैट यू आर एनरोल्ड इन द स्कूल। स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है। ओके, and that enrollment makes it very clear that you are a part in the school. Got it? So how do we come to know? Abhi so many schools are there, thousands of schools might be there all over India. तो वहां के सारा डाटा, all the data from all the schools is collected. Okay, this data from all the school is collected and then this data is compiled। इसको सारा डाटा को एक में किया जाता है एंड देन नंबर कम्स, एक नंबर जो फाइनल नंबर आता है, द लेटेस्ट नंबर कम्स, दैट इज द स्टेटस ऑफ द लिटरेसी रेट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कंट्री। हमारे देश में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हाउ दे आर स्टडिंग एंड व्हाट इज देयर मोड, हाउ लॉन्ग दे आर स्टेइंग इन द स्कूल, कितने बजे तक, कितने बजे, मतलब एवरी डिटेल इज देयर। प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, लिटरेसी रेट में क्या होता है कि वी आर कंसिडरिंग टू थिंग्स, दैट the child who is there in the school can read and write very well. उनको लिखना और पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। If the child is able to read and write properly, अगर लिखना और पढ़ना अगर सही तरीके से बच्चे ने कर लिया तो the child is considered to be as literate. Okay? और यहां पे हम गर्ल्स एंड विमेन की बात कर रहे हैं। We are talking about the girls who are going to the school. Are they going to the school? क्या वो लड़कियां स्कूल जा रही हैं? और देखो क्या होता है कि in the village areas sometimes the girls they go to the school, just give the attendance and then they come back home. It is because the kind of discipline that we follow in the cities, that kind of a discipline is lacking somewhere in the village areas. Okay, फिर घर आके वो अपने भाई बहनों की देखभाल करना, खाना बनाना and all that thing is also done. लेकिन उसको चेक कर पाना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मॉनिटर करा जाए कि लड़की कब आई, कब गई एंड ऑल दीज थिंग्स। दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। दैट मॉनिटरिंग इज नॉट पॉसिबल। उस तरह की मॉनिटरिंग करना जो है वो इट इज वेरी डिफिकल्ट। गॉट इट? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी कि लिटरेसी रेट में व्हेन आर द हाउ मेनी गर्ल्स आर रजिस्टर्ड इन द स्कूल। स्कूल के रजिस्टर में कितने लड़कियों का नाम है। अभी आप देखो, योर क्लास टीचर्स आर मेंटेनिंग एन अटेंडेंस रजिस्टर। Believe me children, in that attendance register all the details are there. How many girls are there, how many boys are there, आर्मी के कितने बच्चे हैं, सिविलियन कितने बच्चे हैं, ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना। You might be knowing it very well. तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, this record that is maintained is the one data that is giving all the informations. इस एक डेटा से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। Got it? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन अभी हम देखो कंपैरिजन, मैंने आपको बताया था ना कि वी विल बी डूइंग द कंपैरेटिव स्टडी। हमको कंपैरिजन करना है। तो 1961 में व्हेन द सेंसस हैड हैपेंड, 15% ऑफ गर्ल्स वेर एजुकेटेड। ठीक है,
देखो यहां पे वी आर एनरोलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी रेट. इन द सेंसस ऑफ 1961, 15% girls and women were registered in the schools. I mean not the women, girls were there who had only 15%. 100 में से सोचो मतलब 85% girls were illiterate. Illiteracy rate was so high. Please try to understand. हाँ, तो we need to understand this problem of literacy and the census that had happened. It has given us a very clear picture. Got it? We have understood. हमको ये समझ में आ गया है कि इस लिटरेसी रेट से क्या देश का भला होगा. How will the country progress when only 15% girls are going to school? Got it? Literacy rate was very low by and लेकिन look at the improvement. Now we see कि जब हम इनिशिएटिव लेते हैं, जब कुछ चीजों का उपाय किया जाता है, when some method is being thought about, when some method is being talked about, तो फिर हमको बदलाव भी नजर आता है. Like 2011 में जो सेंसस हुआ, when एक तो 1961 वाला सेंसस था, 2011 वाले सेंसस में we find 65% of girls were educated. Calculations थे ना, all over India the data was taken, it was compiled, and when the calculation was done, it तो 15% से 65% तक हम आ गए. That is something that is very good. बहुत ही अच्छी चीज है ये. That the literacy rate has reached to 65%. Got it? So when the literacy rate has reached to 65%, अभी भी the battle is not yet over. लड़ाई जारी है. लड़ाई किस चीज की? मतलब विमेन एजुकेशन की, गर्ल्स एजुकेशन की लड़ाई चल रही है. This has to become 100%, my dear children. Do you agree or not? Yes. तो अभी सेंसस होने वाला है. नेक्स्ट ईयर देयर वुड बी सेंसस. लेट्स बी अपडेटेड. आई टॉक टू यू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा डिड यू सी द लेटेस्ट डेटा, because at the end of 2021 the complete data would be compiled and it would be released according to census 2021. ये बड़ा सा काम ऑल ओवर कंट्री, पूरे इंडिया का डेटा आएगा, तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गर्ल्स. क्या अभी भी उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम किया गया है कि नहीं, एंड इज द अवेयरनेस एनफ to get the girls educated on a very large scale. अभी गर्ल्स के एजुकेशन के लिए हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किया है और क्या वो अरेंजमेंट्स परफेक्ट है, ये सारी चीजें जो है we will be seeing, we will be understanding, and then only we will be able to compute, we will be able to find out a solution. मान लो अभी जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट ब्रीफ रफ एक स्केच दे रही हूं. सपोज वी कम टू 85%. ये 65% हो सकता है 85% आ गया हो. इट्स वेरी गुड, नाइस कि इन इंडिया 85% ऑफ गर्ल्स आर एजुकेटेड. दैट्स वेरी नाइस. लेकिन बैटल इज स्टिल ऑन. लड़ाई अभी भी जारी है. क्यों? वी हैव टू ब्रिंग द नंबर टू 100. अभी भी 15% बच रहा है. According to 2011 it was 35%. Suppose 2021 के सेंसस में we come to know कि so many girls are getting education. Got it? तो ये जो लड़कियों को एजुकेशन मिल रही है, it is something that is very encouraging. Okay? And let's keep our fingers crossed. I really hope and wish and pray. मैं तो ये चाहूंगी that 2021 में we come to a data where we find that 100% education is there. लेकिन ऐसा होता नहीं है because lot of poor people are there who are not aware about the education policies, free education, facilities for the girls. उनको पता ही नहीं है इस सब चीजों के बारे में. Okay? So we'll try and understand. We'll see to it
that this data comes to 100%. अभी some tabular datas are there. अभी जानते हो क्या होता है, that there is the scheduled caste and the scheduled tribe people जो जंगलों में रहते हैं. तो this scheduled caste and the scheduled tribe people who are there, उनका काम कैसे चलेगा? क्या उनके यहाँ पे भी गर्ल्स एजुकेशन के लिए जा रही है? देखो, एक लक्ष्मी लाकड़ा का एग्जाम्पल वी हैव गॉट. शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ ट्राइबल फैमिली. शी वॉज फ्रॉम ST, शेड्यूल्ड ट्राइब, फर्स्ट इंजन ड्राइवर. ट्राइबल्स में भी अब अवेयरनेस आ रही है. गॉट इट? तो वी आर फाइंडिंग सम चेंजेस. लेकिन इज दिस चेंज स्टिल कंटिन्यूइंग? लेट्स लुक एट दिस सम डेटा. ये डेटा मैं अभी आपको दिखाती हूं, आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. गॉट इट चिल्ड्रन? Children, just now I told you that we are talking about girls' education, isn't it? So when we are talking about girls' education, 2-3 चीज़ें हैं that we really need to understand. हमको समझने की ज़रूरत है. That's why I have chosen this mode. ये वाला मैंने तरीका खोजा जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि राशि देवी का एग्जाम्पल हमने लिया. वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ राशि देवी. वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ रुकैया हुसैन. ऑल दीज लेडीज़ हु वेर देयर, इनको लिखने और पढ़ने की इजाज़त नहीं थी. एक्चुअली दे डिड नॉट गेट अ परमिशन टू रीड एंड राइट एंड दे वेर नेवर एनकरेज्ड फॉर दैट. ओके, बहुत, आई मीन इट इज़ वेरी सॉरी स्टेट. इसके बाद भी दे हैव ऑलवेज ट्राइड देयर बेस्ट दैट दे डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. कितना पढ़ने की चाहत है. और आजकल के बच्चों को बार बार बोलना पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. दे हैव नेवर सीन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल फेस. कितना परेशानी होती है एक पढ़ाई को करने में, कैसे लड़कियों ने छुप छुप के पढ़ाई की है. तो चिल्ड्रन, व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस हियर इज, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू योर स्टडीज़. पढ़ने का मौका जो मिलता है बहुत मुश्किल से मिलता है. इसको गंवाना नहीं है और इसको व्यर्थ नहीं करना है. यू डोंट नेवर शुड वेस्ट the education that you are getting, the opportunity that you have got. ये जो मौका मिला है ना, इसको जाने नहीं देना है. मेरा यही कहना था आपको. Got it? तो large number of girls attend the schools. आज स्कूल में they are attending the schools, but still बहुत सारे बच्चे हैं, many girls are there who have to leave the school. देखो, please try to understand that why these girls are leaving the school. ऐसा क्या होता है कि उनको स्कूल छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, पॉवर्टी एक तो पहली चीज़ है. पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है. गरीब घरों में द पेरेंट्स दे टेंड टू सेंड द बॉयज़ टू स्कूल, लेकिन गर्ल्स को नहीं भेजते. एंड दैट्स अ रियलिटी. खाली बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसा होता है. इट डज हैपन. ओके, सो वी हैव टू टेक द गर्ल्स आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वी हैव टू सी दैट वी मेक अरेंजमेंट फॉर देयर स्टडीज. ओके, गरीबी है, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़. स्कूल जाके किस तरह से पढ़ाई करनी है इसके बारे में दे डोंट हैव आइडिया. एंड पेरेंट्स ही जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो बच्चे करके क्या करेंगे? व्हाट विल द चिल्ड्रन डू? तो दिस इज देयर. एंड अनदर थिंग इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स. गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज़ नहीं माना जाता है, बट बॉयज़ को फैसिलिटीज़ दी जाती है. दिस इज बैड. यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है. गॉट इट? तो इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ वी हैव टू गिव टू द चिल्ड्रन from all communities, every sphere of life. हर जगह से, every community में the girl should be given right to education. And
the class backgrounds that are there, lower class children, girls are not getting education. The class backgrounds and particularly the girls who are there, it continues to be a challenge in India. Girls education जो है, it is really a challenge. कैसे मैं कह रही हूँ ये देखो, look at the next example. Schooling and education that I was talking to you, boys and girls, they are attending the school large numbers में. And I just now told you about census. Every 10 years पे India is having census, okay? And इसमें lot of informations are there, detailed informations are there about the people who are living in the country. जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी information होती है इसमें, okay? About their age, schooling, what work they do, क्या काम वो कर रहे हैं, and all these things are there. तो number of literate people, ratio of men and women, 1961 census that had happened. I told you ना we will be discussing about 2 census. 2 census के बारे में हम बातें कर रहे हैं. एक तो 1961 census, 40% of all boys and men members who were there, they were literate and they could at least write their names. अभी देखो 1961 में 40% only 40% of boys and men are educated. कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, सच अ बिग प्रॉब्लम इट इज़. मेल मेंबर्स के लिए भी ज़्यादा फैसिलिटी रही थी एंड दे कुड हार्डली रीड एंड राइट. एंड 15%, आई टोल्ड यू, ये तो डेटा मैंने आपको बोर्ड में समझा दिया था. 15% ऑफ गर्ल्स एंड विमेन आर देयर who are uneducated. तो अभी क्या हो गया है, 2011 का सेंसस. वी हैव कंपेयर्ड 2 डेटाज, एक तो 1961 का सेंसस एंड अनदर इज 2011 का सेंसस. तो इट हैज़ ग्रोन टू 82% फॉर बॉयज़ एंड मैन. बॉयज़ का क्या था 40%, वो ठीक डबल हो गया. पहले बॉयज़ का जो एजुकेशन था दैट वाज 1961 में इट वाज 40% ओनली. नाउ इट हैज़ कम टू 82%. एंड गर्ल्स एजुकेशन दैट वाज देयर, इट हैज़ कम टू 65%. गॉट इट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. दे आर गोइंग टू स्कूल्स. नाउ ये देखो, ये हम क्या है, व्हाट इज दिस टेबल? इट इज़ द ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन. ड्रॉप आउट रेट मीन्स बच्चे एडमिशन तो लेते हैं लेकिन फिर वापस नाम अपना टीसी ले लेते हैं. दे डोंट गो टू स्कूल, या फिर स्कूल में एडमिशन ले लिया है बट दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस. ड्रॉप आउट रेट्स कैसा है ये देखो. प्राइमरी क्लासेस में दैट इज क्लासेस 1 to 5, 4.36, 3.88, total percentage is 4.13. Upper primary 6 to 8 में 3.49, 4.60 and 4.03 total. Secondary that is 9th and 10th में many boys were there, many girls were there. जो कि मतलब you know poor families में क्या होता है, जब तक बच्चा जो है who has become 15-16 years old फिर उसको चाय की दुकान पे काम पे लगा देते हैं. गर्ल्स हैं तो उनको घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए भेज देते हैं. दीज थिंग्स आर द प्रॉब्लम. ओके, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब में देखो क्या है, 4.71, गर्ल्स का है 4.20. ओके, 6 to 8 में 5%, 6.03. एवरीवेयर ड्रॉप आउट रेट फॉर द गर्ल्स आर मोर. एंड शेड्यूल ट्राइब, remember Lakshmi Lakda, she was from a tribal family. Scheduled tribe में 7.02 boys, 6.84 girls, 6.93 total. Average percentage, ये 6.93, this is not total. Boys इतने हैं, girls इतने हैं, तो उनका average कितना होगा? Please understand that. And this is in percentage. ये देखो कहाँ से ये लिया गया है, दिस इज टेकन. देखो इन्फॉर्मेशंस का सोर्स पता होना बहुत ज़रूरी है.
Information, just because it is mentioned in the book, don't study that. How much authenticate it is, कितना सही है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है. एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. MHRD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. 2018 से ये डेटा लिया गया है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. कैसे पता चलता है? नाम लिखवा लिया है, अटेंडेंस हो ही नहीं रही है, चिल्ड्रन आर नॉट कमिंग फॉर द अटेंडेंस पर्पज, तो पता चल ही जाएगा. वी विल कम टू नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अनएजुकेटेड. कितने सारे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है. ऊपर वाले टेबल में आप देखोगे SC एंड ST गर्ल्स बहुत ज़्यादा. जस्ट सी दे आर लिविंग, देयर नंबर इज़ वेरी हाई, 24.94, 24.40. गवर्नमेंट इज़ कीपिंग ऑल द डाटा. उनको पता है कौन लड़कियों का एडमिशन करा के और स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो इन सब चीज़ों की खबर रखते हैं. गॉट इट? वी नीड टू एनकरेज द गर्ल्स एजुकेशन. गॉट इट चिल्ड्रन? आगे फिर इसको हम और करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.